बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. And I will share my passion with you people through the course of my lectures. Today we are going to start off our discussion with the subsection of basic concepts of cell biology. Well, I am a big picture guy, and whenever I go to the classrooms even, I have got a tendency to give the big picture to my students. I always like to give the big picture and then I try to build up the finer details into that big picture. It helps me to organize the information in the brains of the students, because I personally think that organization of the information specifically for the subject of biology is very, very important. So here is our today's big picture. First of all, we will discuss cells as basic structural and functional units of living things. सबसे पहले हम cells को living things के basic structural और functional units के तौर पर discuss करेंगे. And secondly, we'll discuss about the big picture of structure of a eukaryotic cell. एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर की मैं आपको बिग पिक्चर दूंगा, एंड आने वाले सब सेक्शंस में हम उस बिग पिक्चर की फर्दर डिटेल्स में जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ आवर डिस्कशन विद द सेल्स एज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स. So you can see here cells are the basic structural units of the living things. So पहली बात यहाँ पे क्या आई है? They are basic structural units. Well students, you know that bacteria are the simplest living things and human beings are most complex living things. Simplest living things से लेके most complex living things तक जितने भी ये organisms हैं, उन सब का जो basic structure है वो cells से बना है. अगर कोई भी entity ऐसी है जिसका structure cellular नहीं है, जो कि सेल्स या सेल्स की प्रोडक्ट्स से नहीं बना हुआ, तो हम उसको लिविंग लेबल ही नहीं करते. इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल वायरसेस हैं. सो वी डोंट लेबल वायरसेस एज द लिविंग थिंग्स. व्हाई सो? बिकॉज वायरसेस के पास सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है. सो पहला पॉइंट कि सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स. एंड दूसरा पॉइंट है हमारे पास, सेल्स आर द बेसिक फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स. सेल्स तमाम लिविंग थिंग्स का फंक्शनल यूनिट भी हैं, यानी कि बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बींग्स तक ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, हर वो सिंगल फंक्शन जो कि वो परफॉर्म करते हैं या परफॉर्म करने की सलाहियत भी रखते हैं, एवरी सिंगल फंक्शन कैन अल्टीमेटली बी एट्रीब्यूटेड टू सेल. Like if I have walked into this room and I'm delivering this lecture to you, even every single function you can observe right now, it can ultimately be attributed to cell. Once a student in the classroom asked a question from me, "Sir, how would you attribute thinking to cells?" Thinking is also a function. It's a function of brain. So अब thinking को किस तरह से cells की तरफ लेके जाएंगे कि how the cells are responsible for thinking? Well, you seen here कि हमारा जो ब्रेन है इसका सबसे एक बड़ा पार्ट है सेरिब्रम. सेरिब्रम इज कंप्राइज्ड ऑफ द न्यूरॉन्स एंड न्यूरॉन्स आर सेल्स. सो सेरिब्रम बेसिकली थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो जो पार्ट जो कि थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन टर्न वो भी किस चीज़ से बना है? सेल से बना है. सो वंस अगेन, एवरी सिंगल फंक्शन विच एनी लिविंग थिंग कैन परफॉर्म दैट कैन अल्टीमेटली बी एट्रीब्यूटेड टू सेल. सो आई हैव गॉट अ क्वेश्चन फॉर यू ओवर हियर. You are supposed to choose a single best answer for each of the statements. You can see in here in the right column I have shown few options, like our A option is atom, B option is molecule, C option is cell and D option is tissue. और जो लेफ्ट कॉलम है इसमें डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, एंड हर स्टेटमेंट के लिए मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इस कॉलम में से कोई ना कोई आंसर पिक करें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? सिंपलेस्ट लिविंग यूनिट इज. The best response to this question is, and the best response to this question is cell. Simplest living unit. कोई भी चीज़ जिसका स्ट्रक्चर सेलुलर लेवल से बिलो है, हम उसको लिविंग लेबल नहीं कर सकते.
राइट। सो सेल्स आर द बेसिक सिंपलेस्ट लिविंग यूनिट्स ऑफ लाइफ। जैसे कि हमारे जो सिंपलेस्ट लिविंग थिंग्स हैं बैक्टीरिया, दे आर ऑल्सो एट सेलुलर लेवल। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विच इज द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। हाँ, लिविंग थिंग्स में जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, अगर आपसे ये पूछा जाए, अब ये कंडीशन यहाँ पे ये नहीं है कि वो यूनिट खुद से भी लिविंग हो, सो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लिविंग थिंग्स, तो यहाँ पे जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा हमारा, दैट वुड बी एटम। सो नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलते हैं। सो यू कैन सीन हियर, यहाँ पे ओवरऑल आपको ये बताया गया है कि लिविंग थिंग्स आर मैटर। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैटर एटम से मिलकर बना है, तो लिविंग थिंग्स भी एटम से ही मिलकर बनी है। सो यू कैन सीन हियर, सो अल्टीमेटली एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है, कंपोज्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स। और एटम्स के कंबाइन होने से बनते हैं मॉलिक्यूल्स। और जो मॉलिक्यूल्स हैं, यू कैन हैव द माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड देन यू कैन हैव द मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है, वो है माइक्रोमोलिक्यूल्स। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, हम उसको कहते हैं दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब ये जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? यू कैन सीन हियर ऑक्सीजन, इसी तरह से वाटर, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स। एंड फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं या लिपिड्स हैं या प्रोटीन्स हैं, दे आर एग्जांपल्स ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स। डोंट जॉइन एनी ट्रेडिशनल एकेडमी। नेशनल एप्लीकेट की तैयारी के लिए ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन ना करें। अगर आप ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन करने की बजाय ऑनलाइन एकेडमी जैसे कि टॉप ग्रेड है से एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हैं, तो इससे क्या फायदा होगा? इससे आप 6 से 8 घंटे डेली बेसिस पे अपनी सेल्फ स्टडी में ऐड कर लेंगे। और याद रखना कि सेल्फ स्टडी इज सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन डिटरमिनिंग द सक्सेस ऑफ ए स्टूडेंट इन द नेशनल एप्लीकेट। और दूसरे नंबर पे आपकी प्रिपरेशन फास्टर, स्मार्टर और मच बेटर होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं एकेडमी गए बगैर, तो आप 50,000 से लेके 1 लाख तक तकरीबन अपनी जो कॉस्ट है उसको भी सेव करेंगे। बहरहाल एटम्स के कंबाइन होने से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो कि इन टर्न माइक्रो या मैक्रो हो सकते हैं। एंड देन फिर मॉलिक्यूल्स के कंबाइन होने से अल्टीमेटली डिफरेंट ऑर्गेनेलीज बनते हैं। फॉर एग्जांपल आप सेल मेम्ब्रेन को भी एक एज एन ऑर्गेनेली कंसीडर कर सकते हैं। सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, न्यूक्लियस, दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनेलीज। इसमें से हम से किसी भी एक ऑर्गेनेली को पिक करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स पिक द सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बनी है? सेल मेम्ब्रेन बनी है कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से और प्रोटीन से। एंड कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स क्या है? These are macromolecules. You can see here that के molecules ultimately ये बनाएंगे organelles, and बहुत सारे organelles collectively they would constitute the cell. और सेल ही बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ऑल द लिविंग थिंग्स का। और यहाँ पे फिर दोबारा मैं आपको रिमाइंड करवाता चलूँ कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एंटिटी जिसका जो मिनिमम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं है, इससे बिलो है, फॉर एग्जांपल जैसे वायरसेस हैं, वो मोस्टली यू कैन से मॉलिक्यूलर लेवल पे हैं, तो हम उसको लिविंग लेबल नहीं कर सकते। बहरहाल सो सेल्स के कंबाइन होने से बनते हैं टिश्यूज। सो टिश्यूज क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स विद कॉमन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, राइट। सो सेल्स के मिलने से टिश्यूज बनते हैं, और उसके बाद फिर टिश्यूज के मिलने से कलेक्टिवली यू गेट द ऑर्गन्स एंड देन द ऑर्गन सिस्टम्स, एंड व्हेन द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स दे वर्क इन हार्मनी विद ईच अदर, दे कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट द ऑर्गेनिज्म, राइट। सो ये बेसिक हायरार्की है। लेकिन यहाँ पे जो एक अहम पॉइंट मैं जनरेट करना चाहता था वो यही था कि कोई भी चीज़ जो कि सेलुलर लेवल पे नहीं है, इससे बिलो है, वो लिविंग नहीं हो सकती। It should be minimum for anything to qualify as a living thing. It should be minimum at the cellular level, या इससे हायर लेवल्स पे कहीं पे भी वो एंटिटी हो सकती है, so as to be called as living. और यहां पे फिर दोबारा देखें कि अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि सिंपलेस्ट लिविंग यूनिट कौन सा है ऑफ लाइफ, तो आपने ये कहना है इट्स सेल। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि लिविंग थिंग्स का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कौन सा है, एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस वुड बी एटम। Now let's move to the next slide.
So now we are going to discuss the big picture of structure of a eukaryotic cell. एक यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को अब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं. So here is a flow sheet. So structure of a eukaryotic cell, you can see in here. एक eukaryotic cell it's comprised of the outer covering, and then you have got the cytoplasm. अब जो outer covering है, in turn ये बनी होती है सेल मेम्ब्रेन से, और समटाइम्स सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है. सारे सेल्स में सेल वॉल का होना ज़रूरी नहीं है. हाँ, सब सेल्स में सेल मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है. सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. और उसके बाद फिर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म इन टर्न इज कंप्राइज्ड ऑफ अ फ्लूइड पोर्शन विच इज साइटोसोल, और साइटोसोल में फिर इन टर्न हैं सस्पेंडेड डिफरेंट ऑर्गेनेलीज. अब फर्दर हम इन ऑर्गेनेलीज को आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे. Rely on your own textbooks and topgrade.pk only. मैंने ओवर लास्ट डेकेड बेतहाशा सक्सेसफुल और फेलिंग स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज किए हैं. जो स्टूडेंट्स का मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलियर है वो ये है कि वो स्कैटर्ड रिसोर्सेज यूज करते हैं. वो बहुत सारी जगहों से एट सेम टाइम तैयारी कर रहे होते हैं. सो ये उनको उनका जो ओवरऑल फोकस है तैयारी के ऊपर, उसको ये चीज स्पॉइल कर देती है. हमने topgrade.pk प्लेटफॉर्म को आपके लिए इसीलिए बिल्ड किया है कि आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा और टॉपग्रेड के अलावा किसी भी और रिसोर्स को कंसल्ट करने तक की जरूरत ना हो. सो रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स. अब जिस भी प्रोविंस से है, रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स एंड topgrade.pk ओनली, क्योंकि आपकी अपनी टेक्स्ट बुक्स के अलावा जितना कुछ भी आपको चाहिए अपने इम्तिहान की तैयारी के लिए वो ऑलरेडी इसमें टॉपग्रेड में मौजूद है. और यहाँ भी मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट 4-5 इयर्स में 200 से ज्यादा ब्रिलियंट टीम मेंबर्स ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, और इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक हम लेके आए हैं कि अब हजारों स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री इससे बेनिफिट ले चुके हैं. सो इससे पहले कि हम ऑर्गेनेलिज की डिटेल्स में जाएं, मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूंगा. एंड अगेन हियर वी हैव गॉट फ्यू ऑप्शंस. लाइक ए ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी ऑप्शन है गोल्जी अपैरेटस, सी ऑप्शन लाइसोसोम्स, डी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, ई ऑप्शन पेरोक्सिसोम्स, एफ ऑप्शन ग्लाइकोसिसोम्स एंड जी ऑप्शन वैक्यूल्स. वैसे यहाँ पे आपको ये भी मैं मेंशन करता चलूँ कि रियल एग्जाम में मे बी ये 4 to 5 ऑप्शंस होंगे, लेकिन जस्ट टू इंक्रीज द रेंज ऑफ माई क्वेश्चंस मैं कई दफ़ा ज़्यादा ऑप्शंस प्रेजेंट कर देता हूँ. And I always like to ask questions before teaching the stuff. Reason क्या है? I always like to create confusions and then I try to fix those confusions. सवालों के बगैर आपकी जो learning है, this is passive learning. I never know कि जो मैं आपको टीच कर रहा हूँ आप इसको परसीव करके रिटेन भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. लेकिन अगर मैं सवालों के थ्रू आपको टीच करूँगा, of course your learning would be active learning. And I always love to teach to my students through the token of questions. Why so? Because I want them to learn actively. So I want you to interact with me while I would be asking these questions from you. So हमारे पास पहला क्वेश्चन है, which of the following is a double membrane bound organelle? इनमें से कौन सा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है? एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज माइटोकॉन्ड्रिया. बाकी लिस्ट में जितने भी हैं दे आर ऑल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज. सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एक्सेप्ट, यानी कि ये सारे के सारे लिवर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं सिवाय किसी एक के. एंड ऑफ कोर्स द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज अगेन द माइटोकॉन्ड्रिया. और उसके बाद फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, नन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एक्सेप्ट, कि दिए गए ऑर्गेनेलीज में से कोई भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है मां सिवाय. देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है जिसमें डबल नेगेटिव स्टेटमेंट है. डबल नेगेटिव स्टेटमेंट है, स्टार्ट पे नन है, एंड पे एक्सेप्ट है, एंड माइनस माइनस मेक्स पॉजिटिव, राइट. सो जब भी डबल नेगेटिव स्टेटमेंट आए यू कैन सिंप्लीफाई द क्वेश्चन, यू कैन अनलॉक द क्वेश्चन बाय मेकिंग अ पॉजिटिव स्टेटमेंट. सो सादा लफ्जों में एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है. एंड अगेन द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज डेल्टा माइटोकॉन्ड्रिया. एंड उसके बाद फिर लास्ट क्वेश्चन है कि पिक द ऑड वन आउट, पिक द ऑड वन आउट, राइट. तो इनमें से ऑड कौन सा है? अगेन ऑड इनमें से माइटोकॉन्ड्रिया है. क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है. बाकी जितने भी यहाँ पे लिस्ट में हैं दे आर ऑल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज.
So here we have got a flow sheet of the organelles. So once again आपको मैं अभी कनेक्ट करता चलूँ with the previous lecture. इसमें अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि यूकेरियोटिक सेल आउटर कवरिंग और साइटोप्लाज्म से बना होता है. आउटर कवरिंग इन टर्न सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल से बनी है और साइटोप्लाज्म इन टर्न साइटोसोल और फिर उसमें सस्पेंडेड ऑर्गेनेलिस से बना है. अब हम इन ऑर्गेनेलिस की ही एक फ्लो शीट कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं एंड आई वांट यू टू मेमोराइज दिस फ्लो शीट. व्हाई सो? बिकॉज इट विल हेल्प यू टू आंसर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछे हैं. So here we have got the flow sheet of the organelles. So organelles categorically इन्हें हम 3 sections में divide कर सकते हैं. So 3 इसकी major categories हैं organelles की. एक हमारे पास है double membrane bound organelles. और उसके बाद भी secondly we have got the single membrane bound organelles on board and thirdly हमारे पास ऐसे organelles भी हैं जिन्हें हम membrane less organelles कहते हैं. So इसमें double membrane bound organelles की लिस्ट में क्या क्या आता है? First of all, you've got the nucleus on board, and secondly the mitochondria, or thirdly plastids. So nucleus, mitochondria and plastids, these are all double membrane bound organelles. और उसके बाद फिर single membrane bound organelles में क्या क्या आता है? You've got the endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, peroxisomes, glyoxysomes and vacuoles. So these are all single membrane bound organelles. Once again, I want you to memorize this list, because it will help you to answer questions on your final exam. And last पे हमारे पास membrane less organelles हैं जिसमें ribosomes top of the line and then the centrioles and cytoskeleton और even अगर आप nucleolus को भी एक separate organelle consider करें, वैसे तो nucleolus या nucleoli they are present inside the nucleus of the eukaryotic cells, लेकिन फिर भी अगर आप न्यूक्लियोलस को भी एज अ सेपरेट ऑर्गेनेली कंसिडर करें तो आप इसको भी मेम्ब्रेन लेस कह सकते हैं. So this was about the organelles and ये हमारे पास फोटोग्राफ है, कंप्यूटराइज फोटोग्राफ है एक सेल की. तो इसमें आप देख सकते हैं कैटेगोरिकली वी हैव गॉट द आउटर कवरिंग जो कि एक एनिमल सेल है जो कि ये इस केस में बनी हुई है किससे? सेल मेम्ब्रेन से. एंड देन वी हैव गॉट द साइटोप्लाज्म. सो ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है. सो आउटर कवरिंग है और साइटोप्लाज्म है, राइट. वही फ्लो शीट रिकॉल करें. और जो साइटोप्लाज्म है इन टर्न इसमें ये जो फ्लूइड पोर्शन है ये साइटोसोल है, फ्लूइड पोर्शन साइटोसोल है. और उसके बाद फिर इसके अंदर सस्पेंडेड डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं जिन्हें आप देख सकते हैं. इनमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड हैं, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स. फिर ऐसे ऑर्गेनेलीज भी हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसोम्स एंड वैक्यूल्स. और फिर लास्ट पे कुछ ऐसे भी हैं जो कि मेम्ब्रेन लेस हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास राइबोसोम्स हैं, सेंट्रियोल्स हैं, साइटोस्केलेटन है. और अगर सेपरेटली कंसिडर करें तो ये जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है ये भी मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली है. सो ये हमने अभी ऑर्गेनेलिस को डिस्कस किया. अब नेक्स्ट सब सेक्शंस में हमारा जो मेजर एरिया ऑफ डिस्कशन है ऑफ कोर्स वो ये सारे के सारे ऑर्गेनेलिस हैं. एंड अगर आप हर ऑर्गेनेली को सेपरेटली डिफरेंट वे में स्टडी करेंगे तो आप इंफॉर्मेशन को एक अच्छे वे में माइंड में ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे. आई वॉन्ट यू टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इन योर ब्रेन, राइट. सो इसके लिए हम सारे के सारे ऑर्गेनेलिस को अगर एक ही स्ट्रक्चर में रहते हुए स्टडी करेंगे हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा इनके बारे में अंडरस्टैंड करना, इनके बारे में इंफॉर्मेशन को रिटेन करना और इवन इनको आपस में कोरिलेट करना, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम. सो हम जितने भी हमारे ऑर्गेनेलिस हैं, मेजर ऑर्गेनेलिस हैं जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन्ड हैं, हम उन ऑर्गेनेलिस को डिस्कस करेंगे अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम हर ऑर्गेनेली का जनरलाइज्ड एक इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर अगर रेलेवेंट होगा तो हम उसकी लोकेशन और मे बी साइज, नंबर और शेप वगैरह को भी डिस्कस करेंगे. और थर्ड नंबर पे हम हर ऑर्गेनेली के बारे में ये भी डिस्कस करेंगे कि ये केमिकली किन चीज़ों से मिलकर बना है. और उसके बाद फिर फोर्थली हम उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे. एंड लास्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉट द फंक्शंस ऑन बोर्ड. सो आखिर पे हम फंक्शंस पे फोकस करेंगे. हर ऑर्गेनेली के साथ रिलेट करके हम देखेंगे कि कौन सा ऑर्गेनेली कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है सेल के अंदर. यहां पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है दैट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को तो डिटेल में डिस्कस करेंगे ही, लेकिन इससे पहले ये जो स्टफ है लाइक इसका इंट्रोडक्शन, लोकेशन, साइज, शेप, नंबर और केमिकल कंपोजिशन वगैरह हम इनको इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर और फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए ये स्ट्रॉन्ग प्रीरेक्विजिट्स हैं. सो अगर आप इस बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स इट वुड बिकम ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द स्टफ एंड रिटेन इट लेटर ऑन, राइट.
So thank you very much. This is the end of first subsection. So thanks for the patient listening. And now I want you to go to our website, the topgrade.pk, and I want you to open up the fast revision notes of this lecture, and you can review the highest yield points from those fast revision notes from there. And again, I will see you in the next subsection. Thank you very much.